بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو و درگزر کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حمیرہ امرین AB نیوز اردو میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ 2 تا 8 مارچ تک شہر کریم نگر میں بک فیئر کا انعقاد۔ AIMIM پارٹی یوم تاسیس کے موقع پر کریم نگر میں پرچم کشائی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی کی سالگرہ پر کریم نگر قائدین کی مبارکباد۔ گیس کی قیمت میں اضافے کے خلاف ریاست کے مختلف مقامات پر احتجاج۔ کریم نگر میں پریرنا 2023 کے نام سے شعور بیداری و حوصلہ افزائی پروگرام کا انعقاد۔ جگتیا ضلع کلکٹر شیخ یاسمین بادشاہ کا اچانک سرکاری دواخانے کا معائنہ۔ ضلع جگتیال میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاری سے متعلق ہم آہنگی اجلاس۔ ریونت ریڈی کی پدیاترا لا حاصل، حسن آباد میں غلط بیانی کی مذمت۔ جگتیال بلدیہ کی سابق چیئرپرسن ڈاکٹر بھوگا شراونی BJP میں شامل۔ BJP کے اقتدار میں آنے پر تلنگانہ میں بھی بلڈوزر کارروائی کی جائے گی، بنڈی سنجے۔ تلنگانہ گورنر تمیلی سائی سوندرا راجن کے خلاف سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ انٹرنیٹ پر پابندی کے معاملے میں ہندوستان سر فہرست۔ اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ بروز جمعرات ضلع مرکز میں واقع جیوتی راؤ پھولے پارک میں عالمی یوم خواتین کے ضمن منعقد کی جا رہی ہفتہ واری تقاریب و بک فیسٹیول کے افتتاحی پروگرام میں وزیر برائے بہبود پسماندہ طبقات و سول سپلائز گنگولا کملاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دولت علم کے حصول کا بہترین ذریعہ کتابیں ہیں۔ کتابوں کے مطالعے سے ہم اپنی زندگی کو شاندار انداز میں ڈھال سکتے ہیں۔ تلنگانہ کی تشکیل 9 کے بعد عالمی یوم خواتین کے ضمن کریم نگر ضلع میں تلنگانہ ساہتیہ اکیڈمی اور ضلع انتظامیہ کے احاطے میں ہفتہ واری تقاریب و بک فیئر کا بڑے پیمانے پر انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال منعقدہ بک فیئر میں تقریباً 16 لاکھ روپے کی کتابیں فروخت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کی بدولت ہی نسلوں کی تاریخ تابناک ہے۔ ضلع کریم نگر شاعروں اور فنکاروں کا گہوارہ ہے۔ ملک کے وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ جو کتابوں کے مطالعے کا ذوق رکھتے تھے، اسی علم کی بدولت ہندوستان کی معاشی حالات میں بے مثال بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر نارائنا ریڈی، وجیا سارادھی، N بھاسکر، A دیوندر جیسے عظیم ادیب و مصنف بھی ضلع کریم نگر سے تعلق رکھتے تھے۔ ضلع میں منعقد کیے جا رہے اس بک فیئر میں افتتاحی روز سے آخری دن تک متعدد شاعروں، ادیبوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے تہنیت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر RV کنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء میں مطالعے کا بچپن ہی سے ذوق ہونا چاہیے۔ کتاب پڑھنا ایک مشغلہ ہے اور اسے باقاعدہ سرگرمیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ ضلع کریم نگر جو فنکاروں کا گہوارہ ہے، عالمی یوم خواتین کے اس ہفتہ واری تقاریب کے ہر دن متعدد فنون کو شامل کیا گیا۔ اس موقع پر ادیبوں و فنکاروں کو پدما شری وجیا سارادھی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ تلنگانہ ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین G گوری شنکر نے خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر RV کنن کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ضلع میں بک فیئر کے انعقاد کے ساتھ میٹروپولیٹن شہروں میں دستیاب کتابوں کی مقامی افراد کے لیے دستیابی کو کامیاب کوشش کی۔ اس اجلاس میں پولیس کمشنر سبا رائیڈو، ضلع پریشد صدر نشین کنولا وجیا، ریاستی سول سپلائی کارپوریشن چیئرمین سردار روندر سنگھ، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، ایڈیشنل کلکٹر GV شیام پرساد لال اور دیگر نے شرکت کی۔
इसी तरह एक और खबर, AIMIM पार्टी के 65वें यौम तासीस के मौके पर बरोज़ जुमेरात करीमनगर MIM पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में करीमनगर सिटी सदर और तेलंगाना हज कमेटी के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह 52वें डिवीज़न मुकरमपुरा और 27वें डिवीज़न हुसैनीपुरा में पार्टी के यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई की गई। MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि MIM पार्टी अपने कायद हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की कोशिशों के नतीजे में आज पूरे मुल्क के 14 रियासतों में फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि मरहूम अब्दुल वहीद अवैसी और सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने बहुत मेहनत की और बहुत अजियतें बर्दाश्त की और कदम कदम पर कुर्बानियों की बुनियाद पर पार्टी की तामीर की और हाल ही में मुंबई में अपना पहला कौमी सियासी कन्वेंशन मुनक्किद किया है। गुलाम अहमद हुसैन ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में शहर के 25 डिवीज़नों में मैदानी सतह पर MIM को मजबूत करने और बूथ सतह पर मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में सब मिलकर काम करेंगे और 25 डिवीज़नों में कामयाबी हासिल करेंगे। MIM सिटी जनरल सेक्रेटरी बरकत अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी खमरुद्दीन, कारपोरेटर्स अब्बास समी, शरफुद्दीन, अखिल फेरोज, आतिना, अली बाबा के अलावा लीडर फसीउद्दीन, खालिद, काजिम अली खान, सुरेश, साजिद, अजीमुल्ला खान, शकीलुद्दीन, अता, इस्माइल, इलियास, अब्दुल्ला खान ने तकरीब में शिरकत की। इसी तरह एक और ख़बर, रियासती वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली के यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला करीमनगर के बेशतर मकामात पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने केक काटकर आपस में तकसीम करते हुए जश्न मनाया। मोहम्मद अब्दुल खदीर और सैयद नईमुद्दीन ने इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दराजी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमाई। और अच्छी सेहत के लिए हम दुआ मांगते हैं। महमूद अली साहब एक खुशमिजाज इंसान हैं जो। इसी तरह एक और ख़बर, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से घरेलू पकवान गैस की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए करीमनगर और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। कमिश्नर ऑफ पुलिस करीमनगर एल सुब्बा रायडू ने बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्तला फराहम की कि शहर करीमनगर की आवाम के लिए शऊर बेदारी व हौसला अफजाई के लिए प्रेरणा 2023 प्रोग्राम बमुकाम वन्नती गार्डन्स करीमनगर पर अल्फोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और शान मीडिया इश्तिराक से मुनक्किद किया जा रहा है। 3/3/2023 ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు వేదిక AMR ఉన్నతి కన్వెన్షన్ అలుగునూరు. ప్రముఖులచే కెరియర్ గైడెన్స్, మోటివేషన్ స్పీచెస్, సక్సెస్ స్టోరీస్. జూనియర్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, PG విద్యార్థులందరూ పాల్గొనగలరు. జూమ్ మీటింగ్ యాప్ ద్వారా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే అవకాశం కలదు. ఇట్లు పోలీస్ కమిషనరేట్, ఆల్ ఫోర్స్ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शियान मीडिया। इसी तरह एक और ख़बर, शेख जमील अहमद की इत्तला के बावजूद ज़िला कलेक्टर जगतियाल शेख यास्मीन बादशाह ने ज़िला मुस्तक़र में वाक़ मेडिकल कॉलेज अचानक दौरा करते हुए जारी कामों का मुआयना किया। सच्चा और बच्चा मरकज़ के रूबरू मौजूद KGBV तालीमी इदारे तालिबात की मौजूदगी को देखते हुए उनसे इस मुकाम पर आने की वजह और तालिबात की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। तुलबा का कहना था कि वो बीमार होने की वजह से तिब्बी इदारे से रुजू हुए हैं। उन्होंने फौरी तौर पर तबीब को तलब करते हुए तुलबा के लिए ज़रूरी इलाज फराहम करने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने पुराने बस स्टैंड में वाक़ सरकारी जूनियर अस्पताल में क़ायम करदा सदरम कैंप का मुआयना किया। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। ज़िला कलेक्टर जगतियाल शेख यास्मीन बादशाह ने ज़िला जगतियाल में इंटरमीडिएट इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में हम आहंगी इजलास का मुतालिका अहदेदारों के साथ इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने अहदेदारों को ताकीद की कि
बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी किस्म के गैर कानूनी वाक़यात न होने पाएँ। उन्होंने महकमे आरटीसी के अहदेदार को ताकीद की कि तलबा की वक्त से कबल इम्तिहान गाह में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों से आमद व रफ्त के लिए बसों का इंतज़ाम करे। महकमा तिब के अहदेदारों को एक बार 2 रुकनी टीम मेडिकल के अमले को इब्तदाई तिब्बी सहूलियात के साथ खिदमात की अंजामदही के लिए मुकर्रर करने की ताकीद की। साथ ही साथ महकमा बरक़ी के ज़िम्मेदार अफराद इम्तिहान गाह में बरक़ी कटौती न होने के लिए मौसर इक़दामात करे और आग बुझाने वाला अमला भी मोहतात रहे ताकि नागहानी सूरत हाल पेश आने की सूरत में इनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा किया जा सके। इस इजलास में ज़िला एग्ज़ाम्स कन्वीनर नारायणा, कमेटी के अराकीन गंगाधर, महकमे जात पुलिस, रेवेन्यू, पोस्ट ऑफिस, बरक़ी, आग और तालीम के अहदेदार मौजूद थे। इसी तरह एक और ख़बर, सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद हल्के के मुख्तलिफ मवाज़ियात में कल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी की जानिब से मुनज़्ज़म की गई हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा के दौरान रियासती हुकूमत और मकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करने की शदीद मजम्मत करते हुए वी सतीश कुमार ने पद यात्रा को लाहासिल करार देकर इस्तफसार किया कि आया वो किसके लिए पद यात्रा कर रहे हैं। रियासती अवाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर केसीआर हुकूमत से ना सिर्फ मुतमईन बल्कि खुश है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ए रेवंत रेड्डी महज अपने ज़ाती मफाद और दूसरे सियासी जमातों का आलाकार बनकर रियासत के मासूम अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ताहम तेलंगाना के बाशऊर और ज़िम्मेदार शहरी किसी के वरगलाने से गुमराह होने वाले नहीं हैं। वी सतीश कुमार ने अज़ा मज़ाक कहा कि कांग्रेस कायदीन को हाथ से हाथ जोड़ने के लिए नहीं बल्कि पार्टी कायदीन को आपस में जोड़ने, दिलों को मुत्तहिद करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। तेलंगाना के जगतियाल बल्दिया की साबिका चेयरपर्सन डॉक्टर भुगा श्रावणी ने बिलाखिर ज़ाफ़रानी खंडवा पहनकर तमाम अंदाज़ों को दुरुस्त साबित कर दिया कि वो बीआरएस पार्टी से मुस्तफ़ी होने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। जगतियाल रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार से नाराज़ भुगा श्रावणी ने जनवरी में चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। उसी दिन सियासी तज्ज़िया निगारों ने कहा था कि भुगा श्रावणी बहुत जल्द ज़ाफ़रानी खंडवा पहनने वाली हैं, क्योंकि जिस दिन भुगा श्रावणी ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की थी, निज़ामाबाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव कवरेज किया था, जबकि वो वहां मौजूद ही नहीं थे। भुगा श्रावणी ने कल दिल्ली में अपने शौहर के साथ मिलकर मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन डी अरविंद, जी विवेक और डी के अरोना भी मौजूद थे। इसी तरह एक और खबर, बीजेपी के तेलंगाना के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर राज का वादा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद मुजरिमों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कातिलों और अजमत रेजी करने वालों और खवातीन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उनके घर मुनहदम कर रहे हैं। तेलंगाना में भी पार्टी के इख्तिदार में आने पर खवातीन की अजमत रेजी करने वालों, कत्ल करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजे गए 10 बिलों को ज़ेर इल्तिवा रखा गया है। इन बिलों की मंजूरी के लिए गवर्नर को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई है। काबिल ज़िक्र है कि चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। हुकूमत ने अपनी रिट पिटीशन में कहा कि गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन का रवैया ठीक नहीं है। हुकूमत की तरफ से भेजे गए बिलों को 6 माह से इल्तिवा में रख दिया है। बीआरएस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात का फैसला करने की ख्वाहिश की कि गवर्नर का दायरा कार क्या है और बिलों को क्यों मंजूर नहीं किया जा रहा है। हुकूमत ने गवर्नर से बिलों को मंजूर करने के अहकामात देने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है।
درخواست کی سماعت 3 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن میں تقررات کے معاملے میں اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر (CEC) اور الیکشن کمشنر (EC) کے تقرر پر اہم فیصلہ لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کا تقرر CBI چیف کی طرز پر کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں وزیر اعظم، لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ کمیٹی صدر جمہوریہ ہند کو ایک نام تجویز کر کے روانہ کرے اور صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور خبر، ہندوستان مسلسل 5ویں سال دنیا میں انٹرنیٹ بند ہونے کے معاملے میں سب سے آگے رہا ہے۔ 2022 میں دنیا میں کل 187 بار انٹرنیٹ پر پابندی لگائی گئی، جس میں سے ہندوستان میں 84 بار اس پر پابندی لگائی گئی۔ اس میں بھی جموں کشمیر میں انٹرنیٹ پر زیادہ سے زیادہ پابندی لگائی گئی۔ یہاں ایک سال میں 49 بار انٹرنیٹ بند ہوا۔ یہ رپورٹ نیو یارک میں قائم ڈیجیٹل حقوق کی وکالت کرنے والے گروپس ایکسس ناؤ کی طرف سے منگل کو جاری کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنوری اور فروری 2022 میں کشمیر میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کی وجہ سے مسلسل 3 دن تک انٹرنیٹ بند رہا۔ اس کے لیے ایک کے بعد دیگر 16 احکامات جاری کیے گئے۔ اگست 2019 میں مرکزی حکومت کے ذریعے آرٹیکل 370 کو ہٹائے جانے اور جموں و کشمیر کے 2 مرکز کے زیر انتظام خطوں کی تشکیل کے بعد سے حکومت سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کئی علاقوں میں مواصلات پر مسلسل پابندی لگاتی آ رہی ہے۔ یوکرین اس فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ ایران اس فہرست میں تیسرے نمبر پر تھا۔ ہندوستان میں گزشتہ 7 سالوں میں کل 654 مرتبہ انٹرنیٹ پر پابندی لگائی گئی۔ آخر میں ہم اس امید سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔